नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने राज्य में विकास की जरूरतों पर दिया बल। मुख्यमंत्री नाबाम तुकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद नाबाम तुकी ने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी और वर्तमान में राज्य में वित्तीय संकट से प्रधानमंत्री को रूबरू कराया। नाबाम तुकी ने ये भी बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि अरुणाचल प्रदेश में अधिक से अधिक विकास लाने के लिए प्रधानमंत्री उनकी मदद करेंगे। I met Honorable Prime Minister this morning. Basically, I did not meet last time, so I have to call on him. Karshi call on him to congratulate him for become a Prime Minister of India, and also apprise certain important issues related to my state. I briefed him about the financial gap, the difficulties which we are facing now, and also discuss about the development aspect of the state regarding hydropower development, tourism development, horticulture and agriculture and allied services, education and health sectors, and raise many other issues which is pertinent to my state. The Chief Minister's visit to Prime Minister Narendra Modi may be a courtesy call, but it implies much more for Arunachal Pradesh in terms of infrastructure development and promises made earlier by Modi for the same. So whether this will increase develop into something concrete for the state is yet to be seen. With video journalist Binay Topo, this is Prashanti for Eastern Sky Media. मुख्यमंत्री नाबाम तुकी और स्पीकर नाबाम रेबिया ने किया नई दिल्ली के अरुणाचल भवन में अरुणाचल पर्यटन कार्यालय का दौरा। मुख्यमंत्री नाबाम तुकी और स्पीकर नाबाम रेबिया ने अरुणाचल पर्यटन टीम के प्रयासों की सराहना की और उनसे आग्रह किया कि अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। नाबाम रेबिया ने विभाग के लोगों को अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कई सलाह भी दी। नई दिल्ली के जिला पर्यटन अधिकारी एडोंग मोयोंग ने ईस्टर्न स्काई मीडिया से हुई बातचीत में अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म के कई पहलुओं को सामने रखा और उनकी क्षमताओं के बारे में बताया। It was very sweet of him, taking out his precious time to come into my office to discuss about the tourism. And I think he had just a meeting with Prime Minister Sri Narendra Modi. Then he was talking about, he has appraised about the potential of Arunachal tourism. So that's he was advising me that we should promote Arunachal a little more. Aggressive promotion should be done. I hope they're doing quite well, and we need to give more impetus, and they have to be provided with better infrastructure facilities, better working conditions and all. That's why I was suggesting the tourists who are coming from Arunachal, the domestic tourists or the foreign tourists who would be willing to visit Arunachal, at the entry point, at gate, maybe at Bandardevar, Balukpong, Holongi, we should have the centers to provide, facilitate the tourists to visit Arunachal, talk of ILP or now this foreign tourists, whatever facilities we could provide. Chief Minister Nabaam Tuki and Speaker Nabaam Rebiya's visit to the District Tourism Office in New Delhi is indeed symbolic of the great push that the Tourism Department of Arunachal Pradesh is set to experience this year. With video journalist Binay Topo, this is Prashanti reporting for Eastern Sky Media. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी विकास के प्रति प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री तुकी ने किया राज्य में 3 नई एम्बुलेंस का उद्घाटन, साथ ही लोगों में बांटी कुछ जरूरतें की चीजें। एक तरफ तो राजधानी में आपसू का प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास की बात करते हुए मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने गुरुवार को 3 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। इन तीनों एम्बुलेंस में से एक रामकृष्णन मिशन अस्पताल, एक हीमा क्लिनिक और एक ईटानगर के महिला पुलिस स्टेशन को दी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण कारीगर कल्याण बोर्ड के तहत 8,82,000 रुपए का सामान भी बांटा। एक मजदूर की गरिमा की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा
कि वे राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए उन्होंने मुख्य सचिव से अपील भी की है कि मजदूरों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए प्रत्येक विभाग से 1% उपकर प्राप्त किया जाए। अपने अध्यक्ष की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए आपसू ने निकाली ईटानगर में विरोध रैली। अरुणाचल प्रदेश के हर जिले से हजारों छात्रों ने कल सुबह 9:30 बजे ईटानगर के आकाशदीप से एक विरोध मार्च निकाला और लगभग 4 किलोमीटर के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग और सरकार प्रवक्ता बामंग फेलिक्स से मुलाकात की। छात्रों ने आपसू अध्यक्ष कामता लापुंग पर हमला करने वाले एसडीपीओ बोमगे कामदूक को टर्मिनेट करने के लिए नारे लगाए और अपनी 7 मांगे भी दोहराई। इसी बीच गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग और प्रवक्ता बामंग फेलिक्स ने रैली कर रहे सभी छात्रों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आपसू अध्यक्ष को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। वहीं आपसू के महासचिव ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। The next step is like presently we had a 2-point demand today, but apart from that, as we said earlier, that the 7-point charter of demand stands for APSU. So since this is a rush hour time for admissions and students, and basically we are a pressure group, especially for the students. So we also have to take care of the students. The students, they are having admission time, so we will not be giving them any much trouble. But the statewide phase burn call will carry on with if the government fails to meet all the demands that we have placed. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए अरुणाचल प्रदेश के सूचना और सार्वजनिक संबंध सरकार के संसदीय सचिव बामंग फेलिक्स ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति पर आपसू की मांग पूरी तरह निराधार और अर्थहीन है। बामंग फेलिक्स ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कुछ मापदंड होते हैं जिसके अनुसार ही किसी भी राज्य का बजट तैयार होता है और बजट में ही ये तय किया जाता है कि कितनी राशि किस विभाग को दी जाए। गैर संवैधानिक तरीके से कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। वहीं बामंग फेलिक्स ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति आने वाले जुलाई बजट सत्र के बाद पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। The third, I come to the financial position of the state. There have been lot of talks and rumors doing round over the state's financial position. But let me reveal you all today that the state's financial position is sound and stable. There is no financial crisis as speculated. Mismatch due to 6th Pay Commission implementation and deficit grant of the 13th Finance Commission has affected to some extent. As we all know, on March 2014, we had assembled in the Assembly only for Board of Accounts to give the power to disburse the salaries and wages for government employees. Now, APSU being a student organization, representing the student and calling themselves as an apex organization of the students, they should focus more on the student activities, any kind of student activities, rather than the activities generally placed by the opposition party. Sometimes they should not replicate themselves as an opposition party. If they really come with a problem of their student community, government is there to help them, the department is there to help them, and we are there only for the cause of the students. बंद के चलते कैपिटल कॉम्प्लेक्स में लगी धारा 144 डिप्यूटी कमिश्नर मीगे कामकी ने दिए निर्देश। आपसू के बंद के चलते कैपिटल कॉम्प्लेक्स में 7 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है। आम जनता को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए ये फैसला लिया गया है। ईटानगर के एसपी ने ये कहा है कि किसी ने भी धारा 144 का उल्लंघन किया या कानून को तोड़ा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ने किसी भी तरह के हथियार को साथ रखने पर प्रतिबंध लगाया है। Section 144, the CRPC has been imposed within capital complex in view of frequent bonds, carrying of dao, even licensed firearms, sticks, knives, or weapons of any descriptions have been banned or prohibited within capital complex for safety and security
of public. So I can only appeal public not to carry any weapon, including licensed firearms, sticks or dao, knife, etc. for a period of at least 5 days in Capital Complex. कैपिटल कॉम्प्लेक्स के राजभवन इंडोर बैडमिंटन हॉल में शुरू हुआ बैडमिंटन टूर्नामेंट। ड्री फेस्टिवल के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया यह टूर्नामेंट। अरुणाचल प्रदेश के नियोजन विभाग सरकार के डायरेक्टर मीलो बीदा ने ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और स्थानीय भाषा में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए अपनी प्रतिभा दिखाने और टूर्नामेंट के दौरान खेल भावना बनाए रखने के लिए उनसे आग्रह किया। ईस्टर्न स्काई मीडिया से हुई बातचीत में आयोजन के सचिव ज्ञाति राणा ने बताया कि ड्री फेस्टिवल के दौरान हर साल पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाता है, लेकिन पहली बार बैडमिंटन का आयोजन किया गया है। ड्री जो है हम लोग का बहुत पहले से एक हम लोग का कल्चर शोकोस, हर कल्चर के एस्पेक्ट को शोकोस करने के लिए और अपना ट्रेडिशनल गेम्स एंड स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए इतना साल से हम लोग अपना ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स तो खिलाता ही है, तो उसका बावजूद फुटबॉल भी हम लोग करवाया। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग अपना यूथ लोग का टैलेंट को एक्सप्लोर करके और उन लोग को स्कोप आगे खेलने का मौका भी देता है। अरुणाचल में टैलेंट का कमी नहीं है, लेकिन इन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए जहां पर खिलाड़ियों को तराशा जाए और वो इंटरनेशनल लेवल में अपने स्टेट को, अपने कंट्री को वो रिप्रेजेंट किया जाए। कैमरामैन ओबी मेलोंग के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर की परमानेंट बेंच गुवाहाटी हाईकोर्ट में 30 जून से शुरू होंगे समर वेकेशन। 30 जून से 11 जुलाई तक बंद रहेगा गुवाहाटी हाईकोर्ट। ईटानगर की परमानेंट बेंच गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपने समर वेकेशन की घोषणा की है। 30 जून से शुरू होंगे समर वेकेशन और 12 जुलाई को गुवाहाटी हाई कोर्ट फिर से खोला जाएगा। इन समर वेकेशन के दौरान सब काम किए जाएंगे, लेकिन हियरिंग नहीं होगी। नाहरलगुन का ये जो ईटानगर परमानेंट बेंच गुवाहाटी हाई कोर्ट है, इन लोगों का अभी समर वेकेशन शुरू होने जा रहा है। 30 जून से लेकर 11 जुलाई तक इन लोगों का समर वेकेशन रहेगा और हमारे जानकारी के मुताबिक यहाँ के जो जजेस हैं, इन लोगों का 251 डेज वर्किंग डेज होता है और इन लोगों का छुट्टी अभी समर वेकेशन, विंटर वेकेशन भी इन लोगों का मनाया जाता है। और यहाँ पर हमारे जानकारी के मुताबिक यहाँ पर जितने भी ऑफिशियल काम वर्क है, ऑफिशियल जितने भी काम यहाँ करते हैं वो नॉर्मली चलता रहेगा, लेकिन यहाँ के जितने भी स्टाफ है वो रोस्टर वाइज, जो कि शिफ्ट वाइज इन लोगों का चेंजेस रहेगा और जितने भी यहाँ पर केसेस आएंगे या फिर जितने भी यहाँ पर केस रजिस्टर करेंगे वो नॉर्मली वो चलता रहेगा। कैमरामैन ओबी मेलोंग के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अब एक खबर दिल्ली से है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूजीसी में विवाद हुआ खत्म। डीयू ने लिया 4 साल का कोर्स वापस। 4 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूजीसी के बीच विवाद खत्म हो गया है। यूजीसी के कड़े तेवर के आगे हथियार डालते हुए डीयू FYUP को वापस लेकर 3 साल का कोर्स लागू करने के लिए तैयार हो गई है। डीयू के वीसी दिनेश सिंह ने बयान जारी करके कहा है कि यूनिवर्सिटी ने 4 साल के कोर्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और अब एडमिशन 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में ही होंगे। उन्होंने सभी कॉलेजों को दाखिले की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश में गेल की पाइपलाइन में विस्फोट, 14 लोगों की मौत, 10 बुरी तरह झुलसे और करीब 30 लोग घायल हैं। शुक्रवार की सुबह आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की साइट के पास गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल की पाइपलाइन में हुए विस्फोट के चलते 14 लोग मारे गए और 10 लोग बुरी तरह झुलस गए। साथ ही कुल 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा सुबह 5:30 बजे हैदराबाद से करीब 560 किलोमीटर दूर अमलापुरम मंडल के नगरम गांव में हुआ। संघ लोक सेवा आयोग में अंग्रेजी को अनिवार्य किए जाने पर यूपीएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी। 4 मेट्रो स्टेशन किए गए बंद। संघ लोक सेवा आयोग में अंग्रेजी को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ परीक्षार्थी सड़क पर उतर आए हैं। यूपीएससी के परीक्षार्थियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के 4 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग लगा रखे हैं, तो वहीं कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। दरअसल
हिंदी भाषा में परीक्षा देने वाले छात्रों ने अंग्रेजी को अनिवार्य किए जाने को लेकर आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया है। प्रोटेस्ट यही हुआ कि राजनाथ सिंह हम लोग से इलाहाबाद में घोषणा किए थे, वादा किए थे कि हम लोग आपको, हमारी सरकार आएगी, आपको 6 साल का एज रिलैक्सेशन देंगे, जिसके कारण आप लोग विक्टिमाइज हुए हैं। और उस मांग को पूरा करने के लिए हम लोग राजनाथ जी से आग्रह करने आए हैं और उनको रिमाइंड दिलाने आए हैं और ये आशा करते हैं कि वो हमारी बात को मानेंगे और 2-4 दिन के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये काम ये इमीडिएट होना चाहिए। 30 तारीख तक फॉर्म भरने की डेट है जो डीओपीटी और यूपीएससी ने निकाली है और उस फॉर्म भरने के डेट के कारण अब लोग परेशान है कि पढ़े या ये सोचे कि आना है या नहीं आना है। तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ गई है। 1 जुलाई को होगी इस पर सुनवाई। उच्चतम न्यायालय ने तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की अंतरिम जमानत की अवधि 1 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। न्यायालय 1 जुलाई को यौन उत्पीड़न मामले में तेजपाल की नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई करेगा। तेजपाल के खिलाफ पिछले साल 7 नवंबर को गोवा के एक होटल में अपनी कनिष्ठ सहयोगी का रेप करने, यौन उत्पीड़न और शील भंग करने के आरोप हैं। इस मामले में तेजपाल को 30 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। आज के समाचार अंकों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।